Hello students, let's do the text of the poem Sohrab and Rustam by Matthew Arnold. You see, actually this poem is an extract from Matthew Arnold's long narrative poem Sohrab and Rustam, which was published in 1853. And in this poem, Arnold has recreated the story originally written by the Persian poet Firdaus. The theme of the poem is, of course, highly tragic. A son is killed by father, and the father comes to know he is his son only when the son dies at his hands. So the scene is highly tragic. The poet portrays the impact of gloomy and sad situation which occurs unexpectedly. The message conveyed through this narrative is that fate is all powerful and it is beyond the capacity of the individual to know how it works. So the poet highlights the finite nature of man's capacities and the infinite stretch of destiny which unfolds much more than man can ever imagine. तो पोएम में यही दिखाया है कि भाग्य जो है उसकी पहुंच इंसान की पकड़ से बहुत ज्यादा है. व्यक्ति इमेजिन ही नहीं कर सकता, इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकता कि भाग्य उसके साथ कब कैसे बर्ताव करेगा. इंसान की व्यक्ति की जो कैपेसिटीज हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत लिमिटेड है और जो डेस्टिनी है उसका स्ट्रेच अनलिमिटेड. So the poem when opens, we find Sohrab is lying dead. Sohrab is lying wounded, with his life gradually escaping from his grasp. कि सोहराब जख्मी हालत में पड़ा है, जिंदगी उसकी पकड़ से छूटती जा रही है. His father Rustam stands by him as Sohrab oscillates between life and death. सोहराब जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और उसके फादर दुखी हालत में उसके साथ खड़े. And the struggle ends and finally Sohrab lies motionless in the desert with a broken and distressed Rustam by his side. दुखी और टूटा हुआ, मन से हारा हुआ और दुखी हालत में उसके फादर रुस्तम उसके साथ खड़े. And again you will see in the second part, second stanza of this poem, that a contrast has been established, and this contrast is symbolic of the fact that nature goes on its way without any regard to the personal tragedy of any person. And not only this, even the armies on both sides, they resume the war in a routine manner. Nobody is affected. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो प्रकृति को, ना आपके आसपास के वातावरण को, ना व्यक्ति को, ना उस सेना को, उन सेनानियों को जिनकी साइड से आप लड़ रहे हो. So let's see how the text has been painted by Matthew Arnold. He spoke and Rustam smiled on him and took the spear and drew it from his side. I told you that this is an extract. Previously, Sohrab had said something to Rustam, and now Rustam says that
my son, I wish that the day predicted by you should come soon, and I wish that the sea in which I will be drowned should be really very deep. रुस्तम सोहराब से कह रहे हैं कि काश वो दिन जो तुमने प्रेडिक्ट किया है मेरे जिंदगी में, वो दिन जल्दी से आए और मैं उस गहरे समुद्र में डूब जाऊं। और वो समुद्र बहुत गहरा होना चाहिए, और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक मुझे ये पीड़ा, ये दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्च्यून्स डिक्री है, क्योंकि ये भाग्य का आदेश है कि मुझे ये पीड़ा देखनी पड़ेगी। कौन सी पीड़ा? कि बेटा उसके हाथों ही मर गया और उसके सामने ही उसका बेटा जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। तो ऐसा पीछे वाले पार्ट में था। तो नाउ ही सेज कि ही स्पोक, ही मतलब रुस्तम स्पोक लाइक दिस, जो अभी लाइंस मैंने तुम्हें बताए। तो सोहराब स्माइल्ड ऑन हिम, है ना। तो व्हेन रुस्तम फिनिश स्पीकिंग, सोहराब स्माइल्ड एट हिम and taking hold of the spear, he pulled it out of his side and took the spear and drew it from his side and eased his wounds imperious anguish. Anguish मतलब पीड़ा, imperious मतलब असहनीय, जो इतनी ज्यादा पीड़ा थी, एंड स्पीयर मतलब भाला। तो उसने, किसने? रुस्तम ने उस भाले को पकड़ा और उसको सोहराब की साइड से, क्योंकि वो भाला जो था सोहराब की बॉडी में, उसके साइड में धंसा हुआ था, उसको रुस्तम ने बाहर निकाला ताकि उसका जख्म जो है, उसके जख्म की जो असहनीय पीड़ा है वो थोड़ी कम हो सके, है ना। Took the spear and drew it from his side and eased his wounds imperious anguish. तो सोहराब रुस्तम ने उस स्पीयर को पकड़ा, उस भाले को पकड़ा और उसकी उस साइड से जहां पे वो घुसा हुआ था वहां से उसने उसको निकाला ताकि उसके जख्म की असहनीय पीड़ा कम हो सके। लेकिन हुआ क्या? द ब्लड केम वेलिंग फ्रॉम द ओपन गैश। गैश मतलब खुला जख्म, क्योंकि भाला निकल गया वहां से, वो जख्म और ज्यादा गहरा और खुला दिखने लग गया। वहां से ब्लड जो है बहुत तेज धारा में बाहर आने लग गया। एंड लाइफ फ्लोड विद द स्ट्रीम, और उसके साथ ही यूं लगा जैसे जिंदगी भी बह रही है, क्योंकि जख्म इतनी तेजी से, उस जख्म में से खून बाहर आने लगा। ठीक है, तो ऐसे लग रहा कि जिंदगी भी उसके साथ बाहर चली आ रही है, निकली चली आ रही है। तो ब्लड केम बबलिंग आउट ऑफ द ओपन वूंड एंड लाइफ स्टार्टेड फ्लाइंग विद द फ्लाइंग आउट विद द स्ट्रीम ऑफ ब्लड। क्लियर हो गया? एंड द ब्लड केम वेलिंग फ्रॉम द ओपन गैश, उस खुले जख्म में से ब्लड जो है, वेलिंग का मतलब उछल उछल के, एकदम जैसे पानी कहीं से उछल के बाहर निकलता है बंद जगह से, वैसे अब उस खुले जख्म से ब्लड इतनी तेजी से बाहर आने लग गया। एंड लाइफ फ्लोड विद द स्ट्रीम। स्ट्रीम किस चीज की स्ट्रीम? किस चीज की धारा? ब्लड की। और उस तेज ब्लड फ्लो के साथ यूं लग रहा कि भाई जिंदगी भी बहती चली जा रही है। All down his cold white side the crimson torrent ran, dim now and soiled, like the soiled tissue of white violets left freshly gathered on their native bank by children whom their nurses call with haste indoors from the sun's eye.
देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा हैवी है एंड यहाँ पर क्योंकि पोइट ने सिमली यूज किया है. Naturally, the language will be so somber, so sublime because the scene is so tragic. है ना, क्योंकि सीन ट्रेजिक है और उसका उस ट्रेजिक सिचुएशन का इम्पैक्ट दिखा रहा है पोएट. और सीन इतना ट्रेजिक होने की वजह से तो लैंग्वेज भी वैसी ही अकॉर्डिंगली उतनी सोबराइटी लिए हुए, उतनी सब्लिमिटी लिए हुए होगी. तो पोएट ने यहाँ पर एक सिमली यूज की है ना. तो क्या बोल रहा है, द डार्क रेड ब्लड फ्लोड डाउन हिज कोल्ड वाइट साइड. उसकी बॉडी तो वाइट हो गई. वाइट क्यों हो गई, क्योंकि खून जो इतना तेजी से बही जा रहा है और कोल्ड है. कोल्ड का मतलब क्या हुआ कि भी उसमें जान तो है नहीं, जिंदगी भी तो उस खून की धारा के साथ बाहर बही जा रही है. जीने के बचने के चांसेस अब कम है ना. तो क्या कह रहा है, ऑल डाउन इज कोल्ड वाइट साइड द क्रिम्सन टॉरेंट रेन नाउ डिम एंड सॉइल्ड. है ना, डार्क रेड ब्लड फ्लोड डाउन हिज कोल्ड वाइट साइड. डार्क रेड कलर का ब्लड जो उसकी वाइट बॉडी से, कोल्ड बॉडी से बह रहा था, अब वो डिम हो गया कलर में और गंदा भी हो गया. है ना, क्योंकि इतना तेज ब्लड जो आई जा रहा था वो मिट्टी पे गिरी जा रहा है, वहीं पे वो स्ट्रीम बह रही है. तो इस पर्टिकुलर बात को वो एक सिमली के थ्रू कन्वे कर रहा है. लाइक द सॉइल्ड टिश्यू ऑफ वाइट वॉयलेट्स लेफ्ट फ्रेशली गैदर्ड ऑन देयर नेटिव बैंक बाय चिल्ड्रन. ठीक है, देखो जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो कहीं फूल तोड़ रहे हैं, है ना. और अंदर से उनकी इंडियन कल्चर में तो मदर आ गई कि भाई फटाफट बच्चे धूप में खेल रहे हैं और धूप में वो उनको गर्मी ना हो लग जाए या कुछ भी, तो वो फटाफट बच्चों को पकड़ने आती है, कहाँ शैतानी करने आ गए, और बच्चे फटाफट जो फूल तोड़े होते हैं वो वहीं के वहीं फेंक के चल पड़ते हैं. है ना, तो उस चीज को उस पर्टिकुलर ये वाली पर्टिकुलर सिमली यूज की है उसने इस बात के लिए. है ना, like the soiled tissue of white violet. Violet is the name of the flower. Violets जो white कलर के हैं, ठीक है. लेफ्ट फ्रेशली गैदर्ड, लेफ्ट मतलब छोड़ दिए, फ्रेशली गैदर्ड मतलब जो अभी अभी इकट्ठे किए थे, ऑन देयर नेटिव बैंक, जहां पर वो बच्चे जैसे रहते हैं वहीं पे ही उन्होंने किनारे से वो वाइट कलर के फ्लावर्स जो है वो उन्होंने इकट्ठे किए थे, अभी तोड़े ही थे. है ना, बाय चिल्ड्रन, और बच्चों ने उनको वहीं पे छोड़ दिया मिट्टी में. किन बच्चों ने छोड़ दिया, whom their nurses call with his, जिन बच्चों को उनकी मेड बुला रही है कि जल्दी करो जल्दी करो. इंडोर्स, इंडोर्स मतलब अंदर आने के लिए, फ्रॉम द सन्स आई, उनको धूप से बचना है, बचाने के लिए. किसको धूप से बचाने के लिए, बच्चों को धूप से बचाने के लिए. ठीक है, जैसे व्हाइट कलर के फ्लावर्स, व्हाइट कलर के जो वॉयलेट्स हैं, व्हाइट कलर के जो सुंदर से फूल हैं जिनको बच्चों ने तोड़ा है, लेकिन उनकी मेड्स आ गई कि भी चलो चलो अंदर धूप में बच्चे घूम रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, तो फटाफट उनको जोर से बोलती हैं और कहते हैं कि चलो अंदर चलो. तो वो बच्चे डर के मारे वो फूल वहीं के वहीं फेंक देते हैं, तो जिससे वो सुंदर लग रहे थे फूल जब प्लांट्स पे थे, और अब उन्होंने उठा के उनको मिट्टी में फेंक दिया तो वो फूल गंदे हो गए. तो वही वाली बात किसकी थी, सोहराब की, कि सोहराब का रेड, डार्क रेड कलर का ब्लड था, यंग ब्लड था, इतना एक वेरियर का ब्लड था. लेकिन जब वो भाला उसके वहां से खींचा कि उसकी पेन कम हो जाए, तो वो ब्लड जो है वो एक तेज स्पीड से उस बॉडी में से आने लगा. तो जब ब्लड तेजी से आने लगा तो जिंदगी भी बाय करने लगी कि भी हाँ ठीक है, वो भी जिंदगी भी पकड़ से छूटती जा रही है. तो वो ब्लड जो तेजी से आ रहा था वो उस मिट्टी पे गिरी जा रहा है, जिस मिट्टी पे वो लेटा हुआ है. तो वो मिट्टी, वो ब्लड जो इतना फ्रेश, इतना रेड ब्लड, जो रेड
डार्क रेड कलर का जो ब्लड था वो भी मिट्टी में गिर के वैसे ही गंदा हो गया जैसे वो वायलेट कलर के फ्लावर्स जो बच्चे तोड़ते हैं और उनकी मेड्स आ जाती हैं उनको पकड़ने के लिए, तो वो उन फूलों को वहीं फेंक देते हैं और वो फूल जो इतने सुंदर लग रहे थे और मिट्टी में पड़ के वो गंदे हो जाते हैं। तो वैसे ही उसका ब्लड भी वैसा गंदा हो गया मिट्टी में। ठीक है, ये तो बस बात पे इफेक्ट डालने के लिए उसने ऐसे सिंगली यूज की, सो दैट यू मे फील कि भी जिंदगी जब निकल रही है हाथ से छूट रही है तब कैसा लगता है। ठीक है, हिज हेड ड्रूप्ड लो, उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। हिज लिम्स ग्रू स्लैप, हिज लिम्स ग्रू स्लैप, उसके अंग ढीले पड़ गए। मोशनलेस हो गया, अब कोई मूवमेंट ही नहीं है बॉडी में। वाइट, वाइट तो अपने आप ही हो गया, बॉडी वाइट हो गई क्योंकि ब्लड जो निकल गया, जिंदगी निकल गई। हिले, वो लेटा है, लेके बाद देखो इतना ज्यादा बड़ा डैश डाला है, ये भी एक इफेक्ट डालने के लिए कि भी देखो मोशनलेस पड़ा है वो। वाइट, वाइट बॉडी वाइट है। विद आईज क्लोज्ड, आंखें बंद है। ओनली वेन हैवी गास्प्स, deep heavy gasps quivering through all his frame, frame का मतलब बॉडी, और इतनी गहरी गहरी वो सांस ले रहा है। सांस उखड़ती है जब जिंदगी निकल रही है, बंदा बहुत औखे से सांस लेता है तो वो लंबी और गहरी सांस ले रहा है। डीप हैवी गास्प्स, बहुत गहरी वो सांस ले रहा है, आ रही है जा रही है सांस, जिससे क्या है उसकी पूरी बॉडी हिल गई, है ना, पूरी बॉडी ही हिल गई। कन्वर्स्ड हिम बैक टू लाइफ, इतनी ज्यादा सांस का अंदर आना जाना इतना मुश्किल से हो रहा है कि वो 2 मिनट के लिए जैसे वापस उसकी लाइफ आई। ही ओपन्ड देम एंड फिक्स देम फीबली ऑन हिज फादर्स फेस, तो उसने अपनी आंखों को खोला और फिर ऐसे फीबली, अब तो जान ही नहीं है, खून इतना बह गया और जिंदगी भी बस जाने की कगार पे ही है, तो वो जाते जाते फिर वापस जैसे थोड़ी देर के लिए उसमें सांस आ गई, तो वो अपने फादर के चेहरे को ऐसे कमजोरी भरी स्थिति से देखता है। टिल नाउ ऑल स्ट्रेंथ वाज एब्ड, अब तक तो उसकी सारी ताकत, एब्ड का मतलब खत्म हो चुकी थी। एंड फ्रॉम हिज लिम्स अनविलिंगली द स्पिरिट फ्लेड अवे, और उसके अंगों से उसकी स्पिरिट चली गई। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब उसकी सोल निकल गई उसकी बॉडी से, उसके अंगों से, उसके शरीर से उसकी सोल निकल गई। अनविलिंगली निकली, है ना, इच्छा नहीं थी सोल की जाने की, क्योंकि अभी तो वो यंग था, अभी तो इस दुनिया की में खुशियां देखना चाहता था, अभी तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, तो इसलिए अनविलिंगली गई। कौन? उसकी सोल उसकी बॉडी में। रिग्रेटिंग द वार्म मेंशन विच इट लेफ्ट, मेंशन बोलते हैं बिल्डिंग को, अब यहां पर बिल्डिंग क्या है? उसकी बॉडी। रिग्रेटिंग, वार्म मतलब जहां पे उसको सुकून मिलता था, जहां पे उसको अच्छा लगता था, क्योंकि आत्मा उस शरीर में रह के अब इस जिंदगी को, जिंदगी की खुशियों को देखना चाहती थी, इसलिए उसको बड़ा अफसोस होता है उस खूबसूरत से शरीर को छोड़ने में। किसको? आत्मा को, आत्मा को, है ना। तो अनविलिंगली द स्पिरिट फ्लेड अवे, तो बड़े बेमन से, बेइच्छा से वो स्पिरिट उसकी सोल से निकल जाती है। उसको रिग्रेट होता है, किसको? स्पिरिट को, सोल को अफसोस होता है इतने खूबसूरत इतने अच्छे शरीर को छोड़ने, है ना। मेंशन मतलब बॉडी, एंड यूथ एंड ब्लूम एंड दिस डिलाइटफुल बॉडी। आगे ना आगे वाली लाइन में वो वार्म मेंशन क्यों है, वो मेंशन वार्म क्यों है? वो घर इतना
वार्म, वार्म मतलब जहाँ पे लव है, अफेक्शन है, जॉयज है, हैप्पीनेस है। तो वो खूबसूरत घर क्यों है? क्योंकि उस घर में यूथ है, ब्लूम, अभी तो उसने खिलना है, उसने आगे बढ़ना है। एंड द डिलाइटफुल वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में अभी डिलाइट्स को एक्सपीरियंस करना है। उस आत्मा को अभी उस शरीर में रहना है, उस जवानी को जीना है, उस दुनिया की खुशियों को देखना है। इसलिए वो स्पिरिट जाना नहीं चाह रही, अनविलिंगली उसको जानना पड़ता है। कहाँ से? फ्रॉम हिज लिम्स, उसके शरीर में से उस आत्मा को बेमन से निकलना पड़ता है। उसको वो घर बहुत पसंद है। घर क्या है? शरीर। किसका? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सोहराब की बात कर रहे हैं, है ना? सोहराब को वो घर बहुत पसंद है। वो घर क्यों? क्योंकि वो यंग है, अभी छोटा है। उसने इस दुनिया की डिलाइट्स देखनी है, खुशियां देखनी है, अपनी यूथ को जीना है, अपना वो समय निकालना। So that's how the writers who using such beautiful expressions, they try to uh, display that impact on the minds of the readers. Just as you see, warm mention, unwillingly, है ना? And then you see deep heavy gas quivering through all his frame. देखो छोटे छोटे वर्ड्स यूज करते हैं। फ्रेम बॉडी के लिए यूज हुआ, गास्प वर्ड यूज हुआ। फिर आपने ऊपर देखा soiled tissue of violet, white violets, soiled tissue of white violets, freshly gathered, जो ये यहाँ पे उसने सिमली यूज की, है ना? So I hope now you must have understood what we have been discussing here. Thank you. Next part of the poem we will do in the next video. Thank you.